بات نہیں ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی، اس میں دو لوگ کہاں آ گئے؟ جو شعر ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. اب یہاں پہ دو لوگ کہاں آ گئے جو کسی ایک چیز کی نگرانی کر رہے ہیں؟ یہاں تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اتنی سی بات ہے. جو اصل نگرانی کا مفہوم ہے کہ ہر پہلو سے اس پہ نظر رکھی جائے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک بات. دشمن بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اس لیے اس کو بھی رقیب کا نام دے دیا گیا. یہ سیدھی سادی بات. چلیے، رقیب کے معنی دوست نہیں آتے. دوست نہیں آتا، حلیف کے معنی دوست آتا ہے نا. نگراں ضرور آتا ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست بھی کبھی کبھی مشکل احوال میں نگرانی کا فریضہ انجام دیتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوتا نہیں. تم دیکھو قرآن میں یا شعر و شاعری میں کہیں ہے کیا رقیب کا لفظ دوست کے لیے؟ رفیق کا لفظ ضرور ہے لیکن رقیب کا لفظ نہیں ہے. جی. اور یہ علن جو آیا ہے، ہاں، یہ قرابت داری اور کچھ اس سے الفاظ ہیں. اصل میں لوگوں نے لکھا تو بہت کچھ ہے نا. لکھا حلف بھی ہے، لکھا اللہ بھی ہے کہ عبرانی زبان کے لفظ اللہ کے معنی میں آتا ہے نا. جیسے اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، سب میں ایل جو آیا ہے عبرانی زبان میں ایل اللہ کو بولتے ہیں. اللہ ہے نا. تو اب یہ جو ہے یہ ان کی زبان کا مسئلہ، لیکن ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں عربی نا. عربی میں قرابت دانی کا مفہوم آتا ہے. لوگوں دو ہی جگہ آیا بھی ہے، 8 نمبر آیت میں 10 نمبر آیت پورے قرآن اسی آیت. ہاں، تو وہ تو اسی طرح. اصل میں یہاں جو مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا نا اس کو تھوڑا سا سمجھو تو یہ بات تھوڑا اور سمجھ میں آئے گی. مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ جب دوبارہ ابو سفیان تجدید عہد کے لیے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا، صحابہ کرام نے ریجیکٹ کر دیا، تو دشمنوں نے اور منافقین نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا. پروپیگنڈا یہ شروع کیا کہ الصلح خیر کی بات تو ہمیشہ کرتے رہے ہے نا، اور وہ بھی آپس کا معاملہ ہے وہاں تو اور زیادہ اس کو ترجیح دینی چاہیے. اس لیے کہ مکے میں جو لوگ بھی ہیں انہی مہاجرین یا اہل ایمان کے رشتہ دار ہیں، ہے نا. انہی کی ضروریت ہے، انہی کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. اس کے باوجود صلح نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب صرف زبانی بات تھی، وہ الصلح خیر، قرابت داری کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. آج اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو سب کنی کاٹ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. اس پروپیگنڈے کے جواب میں یہ کہا گیا کہ کیا سے محمد اور صحابہ کرام ہی کی رشتہ داری ان سے ہے؟ ان کی رشتہ داری نہیں تھی کہ کئی بار چڑھ کر کے آئے، کئی بار حملہ کیا اور یہ گئے عمرہ اور حج کرنے کے لیے تو روکا. ان کی قرابت داری نہیں تھی. بعد میں دھوکہ دے کر کے اور حلیفوں سے لڑائی کی تو انہوں نے قرابت داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. یہ جرم تو ان کا ہے، اور تم الزام دے رہے ہو کہ یہ لوگ نہیں رکھ رہے ہیں. یہ تو ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے. سوال یہ تھا جیسے علن آیا ہے اسی سورہ میں تو ہاں آیا ہے، اس کے علاوہ قرآن میں تو ہے نہیں ہے. ہاں حدیث میں یا عربی ادب میں علن رشتہ داری کے معنی میں کہیں ہے. اب ہے یہ کہ وہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن عربی زبان میں ہے، لغت کھولو گے مل جائے گا. اب یہ کہ بڑی لغت اسرائیل، جبرائیل، اللہ، یہ سب حوالے دیے. اصل میں ہے یہ کہ تم نے دیکھی ہوگی منجد، جی ہے نا. تو منجد تو ایک مستشرق کی لکھی ہوئی ہے، وہ اسی کو ہائی لائٹ کرے گا. عیسائی کی لکھی ہوئی
वही कह रहा हूँ, ईसाई मुस्तशिक की लिखी हुई हो तो आप आज कह रहे हैं कि उसी है को हाईलाइट करेगा। हाँ। और इससे पहले कहा गया हाँ। कि मुंजी पढ़ो वो सबसे अच्छी लुगत है। बिल्कुल है, आज भी कह रहा हूँ। मजहब की तरफ नहीं जाता, हाँ? वो असली माना देता है। असली माना देता है, लेकिन है तो वो मुतासिर। कहीं कहीं उन्होंने डंडी भी मारी है। अब जहां हिजरत का माना लिखा है वहां लिखा है फर्रा, हिजरत को फरार करार दिया है। ये माना तुमको किसी लुगत में नहीं मिलेगा जो इस्लामी बैकग्राउंड में लिखी हुई है या उनकी और पुरानी लुगात में है, लेकिन उसने वो माना थोपने की कोशिश की है। हिजरत के माने फरार दिए। हाँ, फर्रा। तो अब कहीं कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन बहैसियत मजमूई उसने अदब का पास लिहाज रख करके, जबान की नजाकतों का पास लिहाज रख करके तैयार किया, तो वो एक चीज है। है ना? कहने का ये मतलब नहीं कि उसकी खूबी नहीं तो हम रद्द करें, उसकी खूबी अपनी जगह मुसल्लम, खामी अपनी जगह, लेकिन खामी पर खूबी छाई हुई है। कहीं कहीं डंडी मारा, कहीं कहीं मारा है, ऐसी बहुत सारी मिसालें। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग कहां पहुंचे थे? इस तरह बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने खरीदा अल्लाह की आयात के जरिए थोड़ी कीमत, समन कीमत को बोलते हैं, प्राइस। फसद्दु, पस उन्होंने रोका उसके रास्ते से, इन्नहुम सा मा कानू यामलून, बेशक वो कितनी बुरी है वो चीज जो वो करते। अब ये किसके बारे में कहा गया? इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला। बात तो मुशरिकीन की चल रही है, बात मुशरिकीन की चल रही है। और इससे पहले जो आया था अहले किताब के लिए आया ना। इससे पहले कहाँ आया था अहले किताब? सूरह बकरा में। सूरह बकरा में। ठीक, तो ये किसके लिए है? मुशरिकीन के लिए है या अहले किताब के लिए? है तो अहले किताब के लिए, क्योंकि किताब तो उन्हीं के पास थी, अहले किताब के पास। हाँ? अहले किताब के पास ही किताब थी। अच्छा, और सोचिए, अहले किताब के लिए। अहले किताब के लिए, तो अहले किताब का तस्करा यहाँ कैसे आ गया? अहले किताब का तस्करा भी आप ही किए हैं। मैंने किया कि कुछ प्रोपगंडा वो कर रहे थे, प्रोपगंडा कर रहे थे मुनाफिकीन और अहले किताब। अहले किताब। हाँ, तो अब जब ये इतना समझ गए तो ये भी समझने में कौन मुश्किल है कि हुजूर के सिलसिले में तजदीद सुलह के रवैये पर गलत प्रोपगंडा करने में सिर्फ मुनाफिक, इसलिए कि मुनाफिकीन क्या जाने, उनको सुझाते थे यही पढ़े लिखे लोग। आज की जाहिल अवाम क्या जाने, ये जितने बिगड़ैल दिग्गज हैं वो ना सिखाते हैं और रास्ता बताते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आज की जबान में हमारी मीडिया वो उछालती है, ट्रोल करती है और फिर आवाम उसके पीछे दौड़ पड़ती है। वरना अगर उसको ट्रोल ना किया जाए, उछाला ना जाए, उसका प्रोपगंडा ना किया जाए, तो आवाम का इतना रिएक्शन तो नहीं आएगा, इतना रद्द-ए-अमल तो नहीं आएगा, इतना चर्चा तो नहीं होगा जितना हो जाता है। वही हाल वहां था। इस तरह के शोशे वो उछालते थे और फिर लोग उसको लेके उड़ते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? वो जानते थे कि हकीकत क्या है, हुजूर का, सहाबा का स्टैंड क्या है, रसूलों का तर्ज अमल क्या होता है, लेकिन फिर भी अपने इल्म को गलत अंदाज से कैश करने के लिए, आज की जबान में कैश करने के लिए मिसगाइड करते थे। उसी को कहा गया इस तरह बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, इसलिए कि मिसगाइड कर दिया तो उनकी चौधराहट बाकी है, तो कमाई के दूसरे बहुत सारे जरिए बाकी हैं। जैसे हमारे यहाँ कितने जज बिक जाते हैं हुकूमत के सामने, कितने सहाफी बिक जाते हैं हुकूमत के सामने,
कितने कलमकार बिक जाते हैं हुकूमत के सामने। पार्लियामेंट में बाकायदे उनको जगह मिल जाती है। हाँ, तो ये है असल चीज जिसको कहा गया इश्तरो बि आयातिल्लाह समनन कलीला फसद्दू अन सबीलिही। और उनके इस तर्ज अमल का नतीजा क्या निकलता है? कहा गया नतीजा कि वो गोया रोकने वाले बन जाते हैं, रोक देते हैं अल्लाह के रास्ते से, और उनका ये अमल इंतहाई बुरा अमल है। ठीक है, तो इश्तरा का तर्जुमा यहाँ क्या करेंगे? इश्तरा के माने तो आता है खरीदना, लेकिन हमारे बाबा ने तर्जुमा किया है तरजीह देना। इसमें अरे तुम्हारे बाबा कौन? माँ अमीन हसन इस्लाही साहब। मेरा कोई दादा बाबा नहीं है। अरे बोलना मैं खामोश है। तुम्हारे बाबा के उस्ताद है ना, उस्तादुल असाज़ा मानते हैं ना सारे इस्लाही। मैं तो फलाही। अरे तुम फलाही हो तो फलाह को तो इस्लाह वाले अपनी मीरासी मानते हैं, कहते हैं हमारे इस्लाहियों ही ने तो उसको आबाद किया है। नहीं, इसका दोनों तर्जुमा कर रहे हैं, इसलिए बेहतर क्या है? बेहतर तो खरीदना ही है। असल चीज खरीदी समनन कलीला ना, एवज में दिया आयात इलाही, यानी उसका गलत मफहूम ये। अब जूनागढ़ी साहब भी तो वही तर्जुमा किए। वो जिसने किया हो उससे बहस नहीं, लोगों को जो समझ में आए उसके लिहाज से कीमत पर बेच दिया। ठीक है, असल में खरीदो फरोख्त का मामला ऐसा है कि वो एक जैसा अमल होता है। हम दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं तो है ना, एक जैसा अमल है, इसलिए हम खरीदना कहें या बेचना कहें बात एक ही हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, हम आपको दे रहे हैं कलम, आपसे ले रहे हैं गल्ला, वो तो ठीक है, जींस के बदले जींस हो जाता है, उसमें आ जाता है तब तो इसीलिए वो गुंजाइश मौजूद है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। सिर्फ मैं वो कह रहा हूँ ना। लेकिन ज्यादातर हाँ, भाई बेचने के माने में और इश्तरा खरीदने के माने में ज्यादा इस्तेमाल यही है। हाँ? लेकिन कहीं कहीं फर्क तर्जुमा करते कुछ उसमें बारीकी होती होगी। क्या चीज? अब आप बताइए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, अब यहाँ क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह ने खरीद लिया। खरीद लिया है, बेचना तो कर नहीं सकते। नहीं, तब तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ज्यादातर ठीक है, तो जहां गुंजाइश नहीं निकलेगी बेचने की, वहां तो खरीदना तर्जुमा करना पड़ेगा, इसलिए कि असल पहलू वही गालिब है। और जहां गुंजाइश है वहां जो कर दे गुंजाइश है। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि क्योंकि वो जानी बुनी कोशिश है और वो खरीदने ही से ताल्लुक रखती है, इसलिए खरीदना बेहतर है। मैं तो कह चुका पहले। फिर कहा जा रहा है ला यरकबूना, ला यरकबूना फी मुमिनिन इल्लम वला जिम्मतन व उलाइका हुमुल मुतदून। वो किसी मोमिन के सिलसिले में लिहाज नहीं रखते कराबतदारी का और ना ही अहद का, और वही लोग हद से तजावुज करने वाले हैं। यहाँ पे एक सवाल से उठता है कि ऊपर तो वो बात आ चुकी थी, यहाँ दोबारा क्यों आई? ऊपर कॉमन बात आई थी, यहाँ स्पेशल से मोमिन के हवाले से क्यों आई? इन्नहुम साअ मा कानू यामलून। हाँ, कि वो बुरा काम करते हैं। हाँ, बुरा काम करते हैं, तो बुरा काम यही। वो तो पहले ही जो बात कही थी वो भी तो बुरा ही काम था ना, वही काम तो ये भी है, उसी को रिपीट किया गया है। इसको तो ये लिए तफसीर में, इसी की तफसीर है वो, हाँ हाँ, उसी का खुलासा है। असल में तफसीर में तो खैर ये हुआ कि माँ मुबहम है, उसकी आगे वजाहत नहीं है, तो ये आयत उसकी वजाहत ये तफसीर में है। ठीक, यकीनन वो अपनी
मफहूम हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि एक बात जब ऊपर बता दी गई, उसे रिपीट क्यों किया गया? और ऊपर जब बताया गया तो वहां कॉमन है और यहां सिंगल है। वहां फीकुम है तुम्हारे सिलसिले में, और यहां है किसी मोमिन के सिलसिले में। वहां है मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक, और यहां है आइंदा कभी भी इस तरह की सूरत हाल पेश आए। तो ये तकरार असलन इसलिए है कि कोई इस मामले को इसी जमाने या उसी वक्त तक महदूद न रखे। हमेशा ये एक उसूली बात है जो हमेशा काबिल अमल और काबिल नफाज होगी, इसलिए उसको इस हैसियत से समझे। एक मतलब तो ये है। दूसरा एक और मतलब भी है। अहद मुआहदा होता है तो अहद मुआहदा करने वाले चंद लोग होते हैं मौजूद आमने सामने। तो ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग बैठ के मुआहदा करते हैं वही उस दायरे में आते हैं, उसके अलावा जो लोग मुआहदा करते वक्त मौजूद नहीं हैं वो उस दायरे में नहीं आते। असल ये देखा जाएगा कि जो मुआहदा करने वाला है उस जैसे कितने हैं, सब उस मुआहदे में इंक्लूड यानी शामिल है। उसी को क्लियर करने के लिए कहा गया फी मोमिनिन, हर एक मोमिन, ये नकरा आया है ना, हर एक मोमिन के सिलसिले में पासो लिहाज रखना जरूरी है। ये ना समझें कि जिनसे हुई थी लिखित पढ़त सिर्फ उनसे करना है, बाकी लोगों के सिलसिले में हम आजाद हैं, कुछ भी करें। ये है तकरार की वजह। ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि अगर कोई ये बात जो वाज़े की गई है या क्लियर की गई है उसका पासो लिहाज नहीं करेगा तो वो भी गोया हद एतदाल से तजावुज करने वाला काउंट होगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गुंजाइश पूरी की पूरी मौजूद है, मुसल्लम है। ये बताया गया। अब आगे एक और उसूली बात समझाई गई। ये भी एक उसूल ही समझाया जा रहा था, लेकिन एक उससे बड़ा उसूल समझाया जा रहा है कि खुद मोमिन की तारीफ में कौन आएगा। ऐसे तो कहने को जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो मोमिन है, लेकिन ये इजहार का मामला तो जिंदगी में एक बार होता है। हमें क्या खबर कि उसने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो कलमा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसी पहचान होनी चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस हो। उसका क्राइटेरिया बताया गया। अकामुस सलाह, आतुज ज़काह, इख्वानुकुम फिद्दीन। क्या मतलब इसका है? असलन तो उनको कहा गया कि तुम तौबा कर लो तो तुम भी इसी में शामिल हो जाओगे, लेकिन साथ साथ ये क्राइटेरिया भी दिया गया कि तौबा की पहचान या शनाख्त करने के लिए कुछ चीजें चेक की जाएंगी, या किसी को मोमिन तस्लीम करने के लिए कुछ चीजें चेक की जाएंगी। और चेक किया जाएगा कि वो नमाज कायम करता है या नहीं, वो ज़कात देता है या नहीं। अगर वो नमाज कायम करता है और ज़कात देता है तो गोया वो तुम्हारा दीनी भाई है या मोमिन है। अब उसके साथ ट्रीटमेंट वैसा ही होना चाहिए। ये एक मुजमल तारुफ है जो कुरान में जगह जगह आता है। हदीस में इसमें थोड़ा सा मजीद तशरीह है। क्या है? किबले की तरफ रुख करे कि नमाज पढ़े।
ये वजाहत क्यों है? नमाज नाम की चीज तो यहूद भी पढ़ते नहीं, उनका किबला अलग है। नमाज नाम की चीज तो ईसाई भी करते हैं, उनका किबला अलग है। हाँ हाँ, आखिर वो जो बैतुल मुकद्दस में एक कुब्बत सकरा को और एक दूसरे गिरिया दीवार गिरिया को किबला करार देते हैं, तो एक यहूदी करार देते हैं, ईसाई करार, ये इख्तिलाफ क्यों? दोनों का दावा है ना कि ये हमारा मुकद्दस मकाम है, इसीलिए तो इनकी आपस में पहले से लड़ाई थी। दो मकाम का दावा है कि एक ही मकाम। एक मकाम का यहूदियों का दावा है, दूसरे मकाम का क्या कहते हैं ईसाइयों का दावा है। तो दोनों मकाम तो अलग अलग है। दोनों मकाम अलग अलग है, लेकिन उसी चौहद्दी में है तब, इसलिए बैतुल मुकद्दस पे दावा सबका है। जो दीवार गिरी भी है वो भी तो ईसाई ही गिरा है। नहीं, गिरी नहीं, दीवार गिरिया है, वो गिरी नहीं है। हम फिर बोलते तो सिरोजारी करते हैं। दीवारें गिरिया जो है ठीक है, मगर वो पहले पूरा पूरी होती है। पहले पूरा, हाँ, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसी दीवार को असलन वो अपना किबला मानते हैं, वो करते हैं, तो उसको दीवारें गिरी नहीं कहा जाता, गिरिया कहते हैं। पहले वो पूरा बकायदे। हाँ, लेकिन वो दीवार तो मौजूद है ना, उसको गिरी हुई दीवार थोड़ा ना कहेंगे। दीवार बची हुई है। हाँ, दीवार बची हुई है। चलिए, तो मैं जो चीज कह रहा था कि हुजूर ने जो कहा मन सल्ला सलातना, और क्या कहते हैं, उसने हमारे किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा, तो असलन ये हमारा किबला अब फाइनल है, अब पुराने सारे किबले अलकत, इसलिए उसको वजाहत के तौर पे अल्लाह के रसूल ने कहा। वैसे एक दूसरी चीज कही है ना, हमारा ज़बीहा खाया, एक पहचान ये भी बताई है। उनका ज़रिया भी तो खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। जब हमने अपनी कुशादगी और अपनी आला ज़रफ़ी शो कर दी, उन्होंने ये नहीं शो किया है, वो ये नहीं तस्लीम करते कि एक मुसलमान का ज़बिया हम खा सकते हैं, उनके यहाँ ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमने ये शो कर दिया है ना। तो जो हदीस के अंदर सराहत मिलती है, ये दो सराहतें उसमें एक्स्ट्रा हैं, और वो इबहाम को दूर करने के लिए, वरना बेसिक बात यही है, ठीक है। इसलिए कि ये जो इताए ज़कात है, ये असलन कुर्बानी ही की एक शक्ल है, माल की कुर्बानी। हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें भी असलन माल की कुर्बानी होती है, बस ये कि उसको एक जानवर की शक्ल में ज़बह करते हैं। तो बहुत शॉर्टकट में तो कुरान भी इसी चीज को पेश करता है, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज और कुर्बानी। हालांकि वो कुर्बानी वही ज़कात का कायम मकाम है, या ज़कात कुर्बानी कायम मकाम है, मिलती जुलती चीज है। मैं सिर्फ वो समझा रहा था, तो वो सिर्फ बतौर वजाहत है, सिर्फ ये असल बात है जो समझने की। और ये जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नहीं करा। हाँ, बताइए आप लोग, बड़े बड़े मुफ्ती तो यहाँ मौजूद। नहीं पढ़ते मगर गलत समझते। क्या चीज? गलत कह रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मुजरिम तो वो है, भाई भी कहते हैं कि आगे जाए मुजरिम तो है। फिर उसका माफ नहीं है, उसका माफी नहीं है। किससे? अरे जब शिर्क पे तौबा कर ले माफी है, तो नमाज छूट गई है, उस पे तौबा कर लेंगे तो माफ नहीं होगा? वाह, माफी मांगी है तो माफी मांगना तो शर्त है, माफी मांगेगा तो माफ होगा, नहीं मांगेगा तो भुगतेगा। देखिए, असल में है ये कि एक चीज होती है जाहिरी पहचान, और एक चीज होती है हकीकी पहचान, है ना। अब जाहिरी पहचान में कहेंगे शक्ल कैसा होता है, तो वाइट,
اور اصلی پہچان اگر بتانی ہو تو میٹھا، حالانکہ مٹھاس کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہے تو اصلی پہچان مٹھاس، جو کھانے کے بعد سمجھ میں آتی، کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے ہی ظاہری پہچان تو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا، کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل پہچان یہ ہے کہ اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں کر رہے ہیں تو مجرم، جائیں گے جہنم کی وادی میں۔ فویل للمصلین۔ چلیے اور کلمہ پڑھنے آئی لو محمد لکھتے آئے سب کو کلیئر ہو کیا چیز؟ آئی لو محمد سے چل رہا ہے، ہاں ہاں جب کلمہ پڑھ لے ہاں ہاں اس بعد آئی لو محمد لکھتے ہاں ہاں بیڑا پاس۔ بیڑا پار ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ہم لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ بعض واقعات میں کیا ہم لوگوں نے یہ نہیں پڑھا کہ بعض اصحاب کی غلطیوں پر جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ ناراض ہوتے تھے؟ ایک صحابی تھے نا، بار بار خراب چیزیں آتے تھے، کوسے بھی کوسے بھی اعلان تان بھی کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت۔ اللہ اور اس کے رسول اب اللہ اور رسول سے محبت کرنا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اقراری ہے، محبت کرتا تو پیتا ہی نہیں لیکن اقراری ہے۔ ویسے ہی آئی لو محمد کرنے والا چاہے کچھ نہیں کر رہا لیکن اقراری ہے، اقراری اور انکاری میں فرق تو ہوگا، یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اتنا اللہ کے رسول نے بھی کنسیڈر کیا ہے، میں صرف وہ کہہ رہا تھا۔ اور یہ حدیث جو آتی ہے ہاں اس کی تصریح کیا کریں گے؟ ہاں کس کی تشریح؟ من ترک الصلاۃ مضافۃ فقط کفر، جو کفر ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تشریح ہمارے علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن کفر ایک ہے لسانی یا زبانی اور ایک ہے عملی۔ عملی کافر ہو گیا، عمل سے کفر کیا، ایک تعویل تو اس کی یہ کی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کافر نہیں ہوا، عملی کافر ہے، عقیدے کا یا اقراری یا لسانی کافر نہیں۔ دوسری تعویل جو کی جاتی ہے اس کی، جو امام حنیفہ ان کے شاگرد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کفر کے قریب ہو گیا، فقط کفر۔ فقط کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے بالکل ٹچ ہونے کے مرحلے میں پہنچ گیا، گویا وہ کفر میں مبتلا ہونے ہی والا ہے۔ تو ایک مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک پہچان بتائی گئی ہے اور اس معاملے میں وہ غافل ہے یا بدعمل ہے، تو وہ گویا اسی شکل میں یا اسی پوزیشن میں بس پہنچا چاہتا ہے، گرے گا بھی گڈھے میں۔ تو ایک دوسرا مفہوم اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ ہاں صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ ڈنڈا مارتے تھے۔ تو مگر وہ جو نماز پڑھتا تھا ہاں ہاں اسی کو مطلب ایک کافر سمجھتے تھے نہیں، ہاں جو نماز نہ پڑھتا تھا، یہ فرق یہی کیا جاتا تھا، وہ نماز نہ پڑھنے والا ہے اور نماز پڑھنے والا ہے۔ عام حالات میں تو یہ کیا جاتا تھا، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ایمان کا دعوے دار بھی ایسا ملتا تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ ہے نا، ایسے تو ملتے ہیں کہ نماز ابھی نہیں پڑھا، بعد میں پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہ مستقل نہیں آ رہا فجر میں، پہنچ گئے گھر چیک کرنے کے لیے، تو سو ہی رہا تھا، والدہ آئی تو والدہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ کہا رات بھر عبادت میں مصروف تھا اس لیے سو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ نفل ہے، یہ فرض ہے نا، نفل کی خاطر فرض کو انجام نہ دینا یہ جرم ہے،
میں اس کو سزا دوں گا، اسے کہو سنبھل جائے، تو ابھی تو ہے